We have done up to the various types of joints. Out of those, synovial joint is the one. So आज हम उसके structures के बारे में पढ़ेंगे पहले. The one is bursa, okay, which is the flattened fibrous sacs. Okay, sacs होती हैं fibers की जो flat होती हैं. Okay, they line with the synovial membrane and helps in filling the synovial fluid. But the main thing is they are not the actual part of the joint. ये जॉइंट का खुद का पार्ट नहीं होती है. ओके, उसके बाद आती हैं टेंडन शीट्स. ओके, ये बर्सा का ही एक पार्ट है. ठीक है, इलोंगेटेड बर्सा जो क्या करता है, टेंडन्स के आसपास अपने आप को रैप कर लेता है. ठीक है, इफ दिस इज द साइनोवियल जॉइंट. ओके, तो आप ये चीज देख सकते हो, दिस इज द बर्सा. ओके, दिस इज द स्कैपुला. स्कैपुला मतलब आपकी ऊपर की हड्डी. ठीक है, दैट इज योर कोलोबोन. ओके, ये लिगामेंट्स हैं. ठीक है, सॉरी, स्कैपुला मीन्स आपके पीछे की बोन. ठीक है, और ये रहे लिगामेंट्स जिसको हम कह रहे हैं व्हाइट में. ये ग्रीन कलर का पार्ट जो येलोइश में है, दिस इज द बर्सा. ओके, ये जो खाली एरिया है, दिस इज द पार्ट वेयर यू विल फाइंड द साइनोवियल फ्लूइड. ओके, ये है आपका जो ह्यूमरस, जिसका मतलब कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. ठीक है, और ये है टेंडन जो कि इसके आसपास पूरी शीथ लगी हुई है. और ये है बाइसेप्स मसल्स का टेंडन. ओके, नाउ शेप के हिसाब से कौन कौन से अलग अलग जो है साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं. तो सबसे पहले आता है प्लेन जॉइंट जो किस में प्रेजेंट होता है, कार्पल्स में. ठीक है, सेकंड आता है हिंज जॉइंट जो उल्ना और ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तीसरा आता है पाइवट जॉइंट्स जो उल्ना और रेडियस में प्रेजेंट होता है. ठीक है, प्लेन जॉइंट का मतलब है कि जो आपके पाम की हड्डियां हैं उनके बीच में होता है. ओके, हिंज जॉइंट हो गया जो आपके बाजू की ऊपर की स्ट्रॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन है उसका, और नीचे की जो बाहर वाली बोन है उसका जॉइंट. जबकि पाइवट जॉइंट है जो नीचे का हिस्सा है आपकी बाजू का, उनकी जो दो बोन्स हैं उनके आपस का जॉइंट. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now next is types of synovial joints based on their shape. तो फोर्थ आता है जो वो है कॉन्डेलॉइड जॉइंट जो किन में होता है, मेटाकार्पल्स एंड फैलिंक्स में. ठीक है, मतलब कि आपके एक्चुअल उंगलियों में और पाम की उंगलियों, जो पाम के अंदर की लंबी हड्डियां हैं उनके बीच का जॉइंट. ओके, सैडल जॉइंट. ठीक है, जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में होता है. ओके, एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में होता है. ओके, ये सारी चीजें बेटा एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो तो आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझाई जा सकती हैं. ठीक है, लेट मी जस्ट सी इफ The skeletal system is a framework of bones, cartilages, and ligaments which consists of all organs. The bones are different in shape, like long bones, flat bones, short bones, and irregular bones.
Basically, human skeleton is divided into two categories. One, axial skeleton. Two, appendicular skeleton. Now let us discuss about axial skeleton in detail. Axial skeleton. Axial skeleton includes skull, hyoid bones, vertebral column, and thoracic cage. Skull. The skull is the framework which supports organs of vision, hearing, smell, and taste. The skull is mainly divided into two parts. One, head bones, also called as cranial bones. Two, facial bones. There are 8 cranial bones and 14 facial bones. Thus, the skull consists of 22 bones. All bones of cranium are flat bones and immovable joints which protects brain. The base of the skull consists of an opening through which medulla oblongata of the brain passes spinal cord. Vertebral column. The vertebral column or backbone is S-shaped which consists of 33 vertebrae. The vertebral column is divided into 5 regions. 1. Cervical vertebrae, 7 bones. 2. Thoracic vertebrae, 12 bones. 3. Lumbar vertebrae, 5 bones. 4. Sacral vertebrae, 5 bones. 5. Coccygeal vertebrae, 4 bones. The 5 sacral bones are fused together as a single bone. The 4 coccygeal bones are fused together as another single bone. Thus, total vertebrae are 26 in number. Thoracic cavity. The thoracic cavity includes 3 different types of bones. 1. Sternum. This is single bone present in the front portion of the thoracic cavity. 2. Vertebral column. This is long vertebral column or spinal cord which is present in the back portion of the thoracic cavity. 3. Ribs. Both sternum and vertebral column are connected on either side with ribs. This is also called as rib cage. Rib cage. Rib cage consists of 12 pairs of ribs. Each rib unites as joint with vertebral column. Ribs are of 3 types. 1. True ribs. 2. False ribs. 3. Floating ribs. True ribs. The first 7 ribs of the rib cage are attached directly to sternum are called as true ribs. False ribs. 8th, 9th and 10th ribs are called as false ribs. These ribs are not attached directly to sternum and the cartilages of the ribs are attached to the 7th rib. Floating ribs. 11th and 12th pair of ribs are called as floating ribs
as they are not attached to sternum. Okay, now the next thing is disease and conditions related to skeletal system. Okay, so the first disease and the most significant problem is arthritis. Okay, does anybody knows about arthritis? Is there anyone who knows about arthritis? सर जब जोड़ों में दर्द होता है Yes. जो So जॉइंट्स होते हैं yes, rheumatoid arthritis जो है, it's a effect of joints, okay, and it is a symmetrical problem. That means if one side of your joint is having problem, the other side of joint will be having problem. Means one limb is having problem at the joint, the same joint of the other limb will also have the problem. Okay, so they may initially begin, okay, in couple of joints, but when the problems start to get worse, they may attack on all the joints you are having. Okay, whether they are hands, wrist, elbow, shoulder, ankles, or even your knees. ओके, इसको हम एक सिंपल सी टर्म यूज करते हैं यहाँ पे पंजाब में, ठीक है? कोई बता सकता है उसको क्या कहते हैं पंजाबी में या हिंदी में? एनीवन? किसको सर आर्थराइटिस को हम किस टर्म से जानते हैं यहाँ पे? नहीं पता? नो सर गठिया कभी सुना है वर्ड कभी? यस सर यस ये वही प्रॉब्लम है, ठीक है, जो इसको बढ़ाती है आगे. This is the rheumatoid arthritis late stages. So you can see deformity of thumb, okay, deviations of the metacarpals, phalangeal joints, and swan-like deformity of your fingers. Okay, this is an X-ray of a person affecting from arthritis, and on the other side is the X-ray of a person of knee joint who is affecting from arthritis. This is an actual photo. Okay, so next is bursitis, that is inflammation of bursa sac. अभी बता के हटाऊं कहाँ पे होती है बर्सा? हमने अभी थोड़ी देर पहले किया कि बर्सा सैक कहाँ पे होती है. भूल भी गए इतनी जल्दी? We have just done this thing कि बर्सा कहाँ पे होती है. This is your bursa, which is a layer between the ligaments of two joints. तो बर्साइटस का मतलब है जब इसमें सोजिश पड़ जाती है तो उसको कहा जाता है बुर्साइटस. ओके, ये जो सोजिश पड़ती है ये किसी चोट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, और इसमें जो स्वेलिंग है उसमें पेन भी होगी. सोजिश जो बढ़ेगी वो पेन के साथ होगी. These are the examples of bursitis.
ओके। This is an elbow joint. Next is tendonitis, inflammation of tendons, जिसमें क्या हो जाता है, किसी भी चीज का मूव करना पेनफुल है। और सबसे कॉमन टेंडाइटिस जो होता है, ठीक है, टेंडनाइटिस का जो सबसे मेन कोज है वो होता है इसकी ओवर यूज। ठीक है, टेंडन्स को जरूरत से ज्यादा यूज में लेके आना, जैसे कि शोल्डर या आपकी लेग की टेंडन्स। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है जब पोजीशन में चेंज आ जाता है उन टिश्यूज में जो कार्पल्स के अंदर होते हैं, जो क्या करते हैं बाद में इनकी नर्व्स को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा टिंगलिंग होती है, जैसे एंड्स घूम रही होती हैं, नमनेस आ जाती है, आपको फील ही नहीं होता है कि आपका जो वो पार्ट है आपके साथ है कि नहीं है। ओके, और सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है इस चीज का, थंब, इंडेक्स फिंगर या मिडल फिंगर। ओके, नेक्स्ट इज ओस्टियोप्रोसिस, मींस वो बोन्स जिसके अंदर पोर्स होते हैं। ओके, एक ऐसी बोन जो अपने सारे मिनरल्स को लॉस्ट कर दे, स्पेशली कैल्शियम, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। और अगर आप उनको हल्का सा, किसी भी बंदे को जिसको ऑस्टियोप्रोसिस की प्रॉब्लम है, उसका बॉडी के पार्ट को या हाथ को, जैसे हम जोर से हेलो मिलाते हैं ना, अगर आप उसके हाथ को जोर से दबा दोगे तो उसके हाथ की हड्डियां टूट जाएंगी। तो ये मोस्ट कॉमन प्लेसेस है जो फ्रैक्चर के लिए होती है, वो कौन सी है, बैक, हिप्स एंड रिस्ट। ओके, इसमें आप नॉर्मली देख सकते हो बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। दिस इज द नॉर्मल बोन, इसमें आपको कैल्शियम प्रॉपरली दिख रहा है, एंड दिस इज अ बोन ऑफ अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोप्रोसिस। ओके, देन इज डिटीरियोरेशन ऑफ वर्टिब्रल सपोर्ट, जिसको क्या कह देते हैं पंजाबी में, कुब पड़ना। कभी देखा है किसी को? Yes, sir. So सर this is normal bone having calcium. This is the osteoporotic bone which is not having any calcium, which leads to these types of problems. Scoliosis, इसको कह देते हैं abnormal curvature of spine। ठीक है, मोस्टली गर्ल्स अफेक्टेड होती हैं इस कंडीशन से एज कंपेयर टू बॉयज। ओके, दिस इज स्कोलियोसिस। देख सकते हो, एक तरफ है एक नॉर्मल पर्सन और दूसरी तरफ है जिसकी बोन, स्पाइन एक तरफ को गई हुई है। ओके, काइफोसिस, काइफोसिस का मतलब होता है कि स्पाइन के अंदर एक हम्प बन जाना, जैसे ऊंट पे एक हम्प होता है वैसे। ये प्रॉब्लम जो होती है वो डीजनरेटिव डिजीज है, जनरेशन या जीन्स की प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती है, लाइक दिस, या फिर आपके पोस्चर की वजह से, बैठते कैसे हो आप, ठीक है, लेटते कैसे हो, ये सब चीजें मैटर करती हैं इस कंडीशन में। लॉर्डोसिस, curvature of vertebra in the lower back,
लोअर बैक में कर्वेचर का जो है बढ़ जाना, जिसकी वजह से ये कैसे दिखती है, स्वे बैक अपीयरेंस, इस तरीके से। मतलब कि पिछली वाली कंडीशन में स्पाइन बाहर को निकली हुई थी, इस कंडीशन में स्पाइन अंदर की तरफ चली गई। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, गर्ल्स का हाई हील पहन। गर्ल्स को आदत होती है काफी ज्यादा हील्स पहन के चलने की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। रिकेट्स, इसका मतलब होता है कि आपकी बोन्स का सॉफ्ट हो जाना और वीक हो जाना, स्पेशली छोटे बच्चों में, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। और ये सबसे कॉमन रीजन है विटामिन डी डेफिशिएंसी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान। नेक्स्ट, दिस इज रिकेट्स। नेक्स्ट इज गाउट, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल्स होते हैं यूरेट्स के, वो जॉइंट्स के बीच में आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, बार बार जॉइंट्स में सोजिश बढ़ती है और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जो क्रोनिक गाउट होता है वो जॉइंट को खराब कर सकता है, तोड़ सकता है, किडनी फंक्शन को डिक्रीज कर सकता है एंड इवन किडनीज में डिजीज जो स्टोन्स हैं वो भी बना सकता है। दिस इज गाउट। आप खुद देख सकते हो कि आपके, इन्होंने पैर की बोन्स का दिखाया है, ठीक है, कि बोन्स के जॉइंट्स के बीच में ज्यादा यूरिक एसिड डिपॉजिट होने की वजह से क्रिस्टल्स ने क्या किया, वहां पे बार बार सोजिश की और एंड में हुआ क्या कि वो जॉइंट्स ही आपस में से टूट के अलग अलग हो गए, लाइक दिस। एक्रोमेगाली। ओके, दिस अकर्स जब बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल कंट्रोल ना। ओके, आपके टिश्यूज जरूरत से ज्यादा बड़े ग्रो हो जाएंगे और ये एक्सेसिव ग्रोथ जो होगी वो कई डिजीज को प्रोड्यूस कर सकती है, जहां इवन उम्र में आप, जितनी आपकी नॉर्मल उम्र है उससे आधी उम्र में ही आपकी डेथ हो सकती है, प्री मैच्योर डेथ। दिस इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। जिसको जाइगेंटिज्म भी कह दिया जाता है। स्पाइना बिफिडा, जिसको बर्थ डिफेक्ट कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी स्पाइनल कोड की डेवलपमेंट प्रॉपर वे से नहीं होती, जिसका स्पाइना बिफिडी का मतलब क्या है, स्प्लिट या ओपन स्पाइन। ओके, ये कंडीशन बच्चे के बोर्न होने से पहले ही पता लग सकती है एंड इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड स्पाइना बिफिड। ओके, मे भी सुना होगा कि जी रीढ़ की हड्डी में जो है पानी से भरा हुआ एक फोड़ा हुआ है। डॉक्टर कई बार कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को या उनके पेरेंट्स को कि बच्चे की पीठ में एक बड़ी सी गुत्थी है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज वो इसको निकाल के ठीक कर सकते हैं। टेलिप्सिस इक्विनोवायरस, या जिसको क्लब फुट कहा जाता है,
ओके, जिसमें आपके पूरे के पूरे पैर की डिफॉर्मिटी हो सकती है बर्थ के टाइम। ओके, इसमें जो बच्चा जन्म लेगा उसका जो फुट होगा या तो डाउन की तरफ ज्यादा पॉइंट करेगा या अंदर की तरफ ज्यादा दिखेगा, लाइक दिस। सार्कोमा या जिसको ओस्टियोसार्कोमा भी कह दिया जाता है, एक सबसे कॉमन टाइप का जो है ये प्रॉब्लम है। ओके, जिसको हम बोन कैंसर कहते हैं, और ये ज्यादातर बच्चों और बड़ों दोनों में ही मिल जाता है। माइलोमा एक कैंसर है जिसमें जो आपके सेल्स हैं बोन मैरो के वो एबनॉर्मल बन जाते हैं, जहां उनमें ट्यूमर बन जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा। आप देख सकते हो स्पाइन के अंदर आपको रेड कलर के मार्क्स दिख रहे होंगे, दोज आर मल्टीपल माइलोमास, जो बाद में इस तरफ अगर आप देखो तो बड़े होके ऐसे बनते जाए। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर कहा जाता है इसको, जो एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है, बोन मैरो से स्टार्ट होता है। ओके, जिसमें करता क्या है कि बोन मैरो जो है एबनॉर्मली बहुत ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनाने शुरू कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, ल्यूकीमिया सेल्स। ओके, और ये सेल्स जो होते हैं वो एक नॉर्मल WBC वाला काम नहीं करते हैं, ठीक है, मगर ये अपनी ग्रोथ नहीं रोक पाते। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सी a slide of person having leukemia. Excess number of WBC in this slide. Okay, बोन मैरो बायोप्सी ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम कई तरीके की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, मगर बोन मैरो निकालने के लिए हमें बोन में से उसको निकालना पड़ता है आइदर लंबर वर्टिब्रा के थ्रू या उसकी बायोप्सी करके। ओके, सो इसके साथ हमारा स्केलेटल सिस्टम का